two seats that were considered to be bastions of the Congress party in Uttar Pradesh, that means Raebareli and Amethi, candidates are yet to be announced for these two seats as well. A silence that was ironically broken by someone who is not even part of the Congress party. Robert Vadra, who threw his hat in the ring on day when 3 congressmen jumped ship from the Grand Old Party. That also included Vijender Singh, the boxer there, who joined the BJP, even when it comes to Gaurav Vallabh joining the BJP, and of course Sanjay Nirupam from the state of Maharashtra being expelled from the party. मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं। अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। But the suspense still continues when it comes to the seats from the Amethi and Raebareli and their probable candidates. Following the declaration by Robert Vadra and his intention rather to contest from Amethi, should he enter the poll fray, many still wonder whether Priyanka Gandhi's husband could be the one to replace Rahul Gandhi as the probable candidate for Amethi from the upcoming Lok Sabha elections. देखिए, हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, चुनाव लड़ने की इच्छा तो कोई भी जाहिर कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को लेना होता है और मुझे लग रहा है 1-2 दिन में वो कमेटी की बैठक हो जाएगी और वो घोषणा हो जाएगी। तो इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बीजेपी के पास अटैक करने के लिए और कुछ है नहीं। स्मृति ईरानी जी 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, उसमें खटास आ चुकी है। स्मृति ईरानी जी अमेठी में सारी सड़कें पक्की करवा रही थी, वो कहीं बनी नहीं है, तो उनके पास मुद्दे नहीं है, जनता उनसे जवाब मांग रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। Sir, you are UP Congress in charge. Robert Vadra is taking claim over the Amethi seat. He is saying that I want to contest the upcoming elections from Amethi seat. Is there any consideration over his name? He has shown his desire to contest the election. When the time comes and the CEC will take appropriate decision. Are you considering his name? His name is being... I am nobody to consider his name. It is the CEC who has to consider it. Sir, the suspense is still maintained over Amethi and Raebareli. As a part of his study, we are keeping it as a, we are not declared it. At the appropriate time, we will make the declaration. Well, meanwhile, the BJP, which is also now actively welcoming all the Congress discontent, even when it comes to that today, when the opportunity has been asked if the old party is like an elephant in a swamp which is getting kicked even by a frog. And if the reason for the disaffection stems from the weakness as a grassroots, confusion still, however, continues in the middle and also till the top. कांग्रेस की हार साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी अब आरएसवीपी पार्टी बन गई है। राहुल सोनिया, वाड्रा प्रियंका पार्टी, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, जनता ने नकार दिया। और राहुल गांधी जब साउथ में चुनाव लड़ने वायनाड को चुनते हैं तो वहां पर भी लगता है हार जाएंगे। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। स्थिति ऐसी नहीं, बहुत गंभीर है और चिंता का विषय है कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसने कभी कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की पार्टी की या कभी पार्टी के सदस्य के रूप में जाना नहीं गया, वो अमेठी जैसी सीट के ऊपर अपना दावा रखता है, उसको हाईकमान की परवाह नहीं है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।